Welcome to you all, Adishri Publication. My name is Shama Parveen and I am your EVS educator. So today with me, you all are going to see your EVS book 3. Okay. And in this class, my dear student, we are going to start your chapter number 1. And the name of your chapter number 1 is Our Family. Okay. My dear students, in this chapter, we all are going to see about our family. We all love our family. I love my family. You also love your family. Okay. So in this chapter, we are going to discuss about family. Okay. So what concept overview we are going to see? Let's see. First of all, we are going to try to understand what is a family. Okay. Types of family, sharing and caring, similarities in the family, customs in the family, having fun together, and family tree. Okay. So all these concepts we are going to see in this chapter. Okay. And apart from them, my dear student, we also going to see some curricular goals. What are those curricular goals? Let's see. Understand the concept of family and its type, nuclear, joint, extended family. Okay. In this chapter, my dear students, we are going to understand the concept of family and as well as the types of family. Some families live in nuclear state, some family live in joint state, and as well as some are large extended family. Okay. Then identify family roles and responsibilities. And we are also going to discuss what are the roles and responsibilities each family member has to do. Okay. Then understand the importance of relationships and traditions. Okay. And we are also going to understand the importance of relationships and traditions. Okay. So this all things we are going to discuss in this chapter number 1. Okay. So come with me and let's see the chapter. The first topic is what is a family. Family क्या है? अभी हम लोग ये देखेंगे what is the family. Let's see. देखिए, children living with their parents in the same house is called a family. Family क्या होती है बताइए सबसे पहले. आपने पढ़ा है, इतना तो आपको आइडिया लग चुका होगा फैमिली क्या है. फैमिली का मतलब होता है बच्चों हमारे घर में हमारे साथ जितने मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं. ठीक है. दे मे बी फ्रॉम 2 और मोर जनरेशन. ठीक है. उसमें बच्चों जो हमारी फैमिली होती है ना, उस फैमिली में एक या दो जनरेशन के लोग रहते हैं. जैसे आप लोग हैं, आप लोग इस जनरेशन के हो. आप ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं वो पहले जनरेशन के हैं, और अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं तो वो उनसे भी पहले के जनरेशन है. तो हुए ना 2 या 3 जनरेशन एक फैमिली में. ठीक है. Parents and children make a family. Parents look after their children. Now, my dear student, here a question comes: who make family? Parents and their children make a family. Okay, and parents always work. Okay, and parents always work for their children's. They provide shelter, food, clothes, education, etc. to their children. अच्छा, पेरेंट्स अपने बच्चों की टेक केयर कैसे करते हैं? पेरेंट्स अपने बच्चों को खाना देते हैं, उनको रहने के लिए घर देते हैं. ठीक है. उनके साथ ही साथ उनको पढ़ाते हैं. उनकी जो भी बेसिक नेसेसिटीज है उन सब का ख्याल कौन रखते हैं? पेरेंट्स रखते हैं. देन चिल्ड्रन लव देयर पेरेंट्स, दे रिस्पेक्ट देम एंड ओबे देम. चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, उनकी सारी बातों को मानते हैं. Now we are going to see the types of family. Okay. In our world, my dear student, every person, every human being used to live in family. Okay. But some person used to live in nuclear family, some used to live in a small family or large family, and some also used to reside within joint and extended family. Okay. So all these types of family now we are going to see. Okay. So first type of family which we are going to see is nuclear family. Now what is the meaning of nuclear family, my dear student? Let's see. वैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में. न्यूक्लियर फैमिली इज अ फैमिली वेयर पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर. तो न्यूक्लियर फैमिली क्या है? न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली है जहां पे पेरेंट्स और बच्चे साथ में रहते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं रहता. ठीक है. देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग फैमिली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग फैमिली? लेट्स सी. इन अ बिग फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर. न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ माँ बाप होंगे और बच्चे होंगे. बिग फैमिली में बच्चों क्या होता है, हमारे साथ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं. तो हमारे साथ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं और हम बच्चे रहते हैं. ठीक है. देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट फैमिली? लेट्स सी. जॉइंट फैमिली. In a joint family, grandfather, grandmother, mother, father, uncle, aunt and their children all live together. Joint family का मतलब क्या है? तो सबसे पहले आप joint का मतलब बताइए मुझे. joint का क्या मतलब होता है? जुड़ा हुआ. तो इसका क्या मतलब है? इस फैमिली में एक तो ये बहुत बड़ी फैमिली होती है. इसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा के साथ साथ हमारे अंकल और आंट भी रहते हैं. ठीक है. हम बच्चे रहते हैं और हमारे कजन्स रहते हैं. ठीक है. तो जहां पे इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं, दैट टाइप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड एज जॉइंट फैमिली. ओके. सो हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ
न्यूक्लियर फैमिली, सी न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं। दिस पिक्चर बिलोंग्स टू बिग फैमिली, ये बिग फैमिली है। बिग फैमिली में अच्छा एक यहाँ पे बहुत स्लाइट डिफरेंस है जो आपको समझना होगा। देखिए न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों मम्मी पापा और सिर्फ दो बच्चे या फिर एक बच्चा, बस इससे ज्यादा नहीं। बिग फैमिली में मम्मी पापा दो से ज्यादा बच्चे रहते हैं, ठीक है। यही है आपके न्यूक्लियर फैमिली और बिग फैमिली का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर आता है ज्वाइंट फैमिली, तो ज्वाइंट फैमिली में इतने सारे लोग रहते हैं, ठीक है। चलिए नाउ द मेन थिंग दैट मैटर इन अ फैमिली आर loving, caring and sharing. Your family members look after you when you are sick and give you comfort when you are sad. ठीक है, एक फैमिली में क्या सबसे ज्यादा जरूरी चीज है? एक फैमिली में बच्चों बहुत जरूरी है कि सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे के काम में हेल्प करें, ठीक है, और शेयरिंग और केयरिंग करें, ठीक है। जब भी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो सारे फैमिली मेंबर्स उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक फैमिली के लिए, ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हियर सम क्वेश्चन कम्स इन ब्रेन ब्लिट्ज। अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। पहला है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शंस में दोगे कि आपके फैमिली मेंबर्स में, सॉरी आपके फैमिली में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन, इज इट अ जॉइंट फैमिली, क्या आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है? अभी आपने पढ़ा है जॉइंट फैमिली क्या होती है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। चलिए समटाइम माय डियर स्टूडेंट व्हाट हैपन, एक और टाइप की फैमिली होती है, बिग जॉइंट एक्सटेंडेड और लार्ज फैमिली के अलावा, न्यूक्लियर फैमिली के अलावा एक और टाइप की फैमिली होती है। उस फैमिली का नाम होता है सिंगल पेरेंट फैमिली, ठीक है। क्या नाम होता है उस फैमिली का? सिंगल पेरेंट फैमिली। ये कौन सी फैमिली होती है? देखिए in some cases there is only one parent who lives with a child or children who is called a single parent. तो सिंगल पेरेंट फैमिली का मतलब ये होता है बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि एक बच्चे के साथ या बच्चों के साथ या तो सिर्फ मम्मी रहती है या फिर सिर्फ पापा रहते हैं, मम्मी पापा एक साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली, और इसी फैमिली को हम लोग कहते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। समझ में आया सिंगल पेरेंट फैमिली क्या है? ये बाकी सारे फैमिलीज के कंपैरिजन में अलग होता है। यहाँ पे बच्चे के साथ या बच्चों के साथ या तो सिर्फ मम्मी रहती है या फिर सिर्फ पापा रहते हैं, मम्मी पापा एक साथ नहीं रहते हैं। तो इस टाइप की फैमिली को हम सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं, ठीक है। सीमा लिव्स विथ हर मदर वर्क्स इन अ बैंक, सीमा लॉस्ट हर फादर व्हेन शी वाज वेरी यंग, हर मदर लुक्स आफ्टर हर, Seema is a good girl. She never troubles her mother. She has a pet dog and she loves it very much. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट फैमिली का एग्जांपल भी दिया है। सीमा अपनी मम्मी के साथ रहती है। तो सीमा जब बहुत छोटी थी तब उसके पापा डेथ कर गए थे, उनके पापा के डेथ हो गए, ठीक है। तो सीमा की मम्मी बैंक में काम करती हैं। सीमा की मम्मी सीमा की हर जरूरत का ख्याल रखती हैं। सीमा भी अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती है। तो आप मुझे ये बताइए बच्चों, सीमा की फैमिली कौन सी फैमिली है? सिंगल पेरेंट फैमिली, क्योंकि सीमा सिर्फ अपने मम्मी के साथ रहती है, पापा के साथ नहीं, ठीक है। नाउ शेयरिंग एंड केयरिंग, देखिए तो शेयरिंग और केयरिंग का क्या मतलब है हमारे फैमिली में? ओके, सीमा हेल्प्स हर मदर इन हर हाउस होल्ड वर्क, हर मदर हेल्प्स हर विथ हर स्टडीज एंड कुक्स हर फेवरेट डिशेस। तो सीमा अपनी मम्मी की हेल्प करती है घर के कामों में, ठीक है। सीमा की मम्मी सीमा के लिए बहुत यमी यमी डिशेस बनाती हैं और सीमा को पढ़ाने में हेल्प करती हैं। शी लव्स सीमा अ लॉट, समटाइम्स सीमा's grandfather comes to stay with them. सीमा looks after him and is very happy to have his company. Okay, she admires her grandfather the most among all her relatives. He is very gentle and kind in behavior and has vast knowledge. ठीक है, तो देखिए सीमा अपने मम्मी को बहुत प्यार करती है, सीमा की मम्मी सीमा को बहुत प्यार करती है। कभी कभी सीमा और सीमा के मम्मी के साथ रहने के लिए सीमा के दादाजी आते हैं। सीमा के दादाजी सीमा को बहुत प्यार करते हैं, उसका बहुत ख्याल रखते हैं। तो सीमा अपने सारे रिलेटिव्स अपने दादाजी को सबसे ज्यादा प्यार करती है, ठीक है। Now similarities in the family. Now my dear student, we are also going to see the similarities among the family members. ठीक है, तो चलिए वो क्या क्या similarities है देखिए। Children often look like their parents. Color of their eyes, skin, hair or sometimes the shape of the face also resembles the parent. हम सब बच्चे किसकी तरह दिखते हैं? मैं अपने पेरेंट्स की तरह दिखती हूँ, आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, है ना। तो देखिए हम सब लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं, या फिर हमारे बाल हमारे पेरेंट्स की तरह होंगे, हमारे आईज हमारे पेरेंट्स की तरह होंगे, या फिर कोई भी फेशियल फीचर हमारा या हम लोगों का हमारे पेरेंट्स से मिलेगा, ठीक है।
दीज आर कॉल्ड हेरिडिटरी फीचर। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसको हेरिडिटरी फीचर कहते हैं कि आपने अपने पेरेंट्स से वो चीज लिया है। सपोज कीजिए आपके मम्मी या पापा में से किसी का आई कलर ब्राउन है, जैसे मेरे मम्मी का आई कलर ब्राउन है, ठीक है, मेरी सिस्टर का भी आई कलर ब्राउन है, ठीक है, तो ये हुआ ना हेरिडिटरी फीचर्स, ठीक है, मेरी सिस्टर ने मेरी मम्मा का आई कलर लिया है, ठीक है, तो बच्चों इसी को कहा जाता है आपका हेरिडिटरी फीचर्स, ठीक है। ब्रदर एंड सिस्टर्स में ऑल्सो हैव सिमिलैरिटीज। अब भाई बहनों में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, ठीक है। समटाइम्स देयर आर ट्विंस इन अ फैमिली हु लुक एग्जैक्टली अलाइक। बहुत सी फैमिलीज में आप लोगों ने देखा होगा, आप में से बहुत से बच्चे ट्विंस भी होंगे, ठीक है। तो जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस का मतलब क्या होता है, जो एक साथ पैदा होते हैं, सेकेंड्स की देरी पे या कुछ मिनट, ठीक है। तो देखो ट्विंस जो होते हैं ना बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू टेल देम अपार्ट। ओके, सो यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ ट्विन। तो आप इसमें ना बहुत बहुत कम कहते हैं ना फर्क होता है ट्विंस के बीच में, ट्विंस बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। नाउ ट्रूथ बैंक, लेट्स सी। ट्विंस नॉट ओनली लुक अलाइक, दे ऑल्सो हैव सिमिलर हैबिट्स। ट्विंस सिर्फ और सिर्फ देखने में एक जैसे नहीं होते, उनके बहुत सारे हैबिट्स भी एक जैसी होती हैं, ठीक है। दे शेयर द सेम इंटरेस्ट ऑल्सो एंड दे आर गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर। वो एक जैसा इंटरेस्ट, मतलब एक को जो पसंद होगा वो दूसरे को भी पसंद होगा, ठीक है, और साथ ही साथ वो एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड भी होते हैं, ठीक है। Now, my dear friend, let's see the customs in the family. What type of customs we all people used to follow in our family? देखिए, some families have customs which are to be followed by each family members. हमारी फैमिली में कुछ कस्टम्स होती हैं जिसने हमें बांध के रखा हुआ है, हम सारे फैमिली मेंबर्स उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। A happy family is the one where the children respect and give regards to their elders and love their parents. Parents take care of their kids and share their feelings with them, ठीक है। फैमिली में हम अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट देते हैं और हमारी फैमिली में हमारे एल्डर्स हमें प्यार देते हैं, ठीक है। Now having fun together, let's see. We like to spend time with our family. We learn many things from them. We learn our manners and good habits from our elders. ठीक है, हम सब लोगों को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। हम अपनी फैमिली से बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं, ठीक है। तो देखिए, we celebrate festivals and special occasions with our family. We go for picnics too. It is a great fun. Okay, we all family members together celebrate many festivals and have a lots of fun. Okay, and we also go with our family members in picnics. Okay, my cousin came to my place on weekends and we played together. जैसे मेरे cousins क्या करते हैं, घर पे आते हैं weekends पे और हम लोग साथ में खेलते हैं, ठीक है। Sometimes all of us go for a movie and have a lots of fun. कई बार आप अपने cousins के साथ या दूसरे family members से मूवी देखने जाते हो, है ना। We also visit our relatives together at night. Sometimes we all go out to eat. We enjoy dinner with our family members, ठीक है। कभी कभी आप लोग अपने रिलेटिव्स के भी घर जाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, डिनर करते हैं और एंजॉय करते हैं, ठीक है। नाउ ट्रूथ बैंक, लेट्स सी। When we are young, our siblings and cousins are our best playmates. We enjoy spending time with them. जैसे अभी आप लोग यंग बच्चे हैं, ठीक है, तो एक बात बताइए, आप सब लोग अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने कजन भाई बहन के साथ खेलना अच्छा लगता है ना, ठीक है। नाउ ब्रेन ब्लिट्स, ये इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे। हु आर ट्विंस? डू यू नो एनी ऑफ ट्विंस? ट्विंस कौन होते हैं? क्या आप किसी ट्विन को जानते हो या आप खुद ही ट्विन हो? तो जो भी है आप बताएंगे मुझे इसका आंसर। विच फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट विद योर फैमिली? आप अपनी फैमिली के साथ कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। डू यू गो फॉर पिकनिक विद योर फैमिली? आप पिकनिक पे अपनी फैमिली के साथ जाते हो, ठीक है। Now, my dear student, we are going to see the family tree. अभी family tree क्या होता है? What is the meaning of family tree? Let's see. Just as a tree grows and gets bigger, a family also grows and gets bigger. जैसे एक पेड़ है, एक ट्री क्या करता है, पहले वो बेबी प्लांट रहता है, वो बेबी प्लांट से ट्री में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जब वो ट्री में कन्वर्ट होता है तो ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों हमारी फैमिली भी ग्रो करती है और हमारी फैमिली के भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। कैसे हैं देख लेते हैं। A family tree shows all the people in a family and how they are related to one another. तो जैसे एक ट्री है, वो दिखाता है ना कि सारे ब्रांचेस एक ही ट्री से जुड़े हैं, उसी तरीके से फैमिली ट्री दिखाता है कि सारे फैमिली मेंबर्स एक ही फैमिली से जुड़े हैं, पर वो कैसे जुड़े हैं ये भी बताता है।
द पीपल प्लेस्ड इन वन लाइन रो ऑफ द ट्री मेक अप अ जनरेशन, ठीक है। इन सारे फैमिली मेंबर्स को हम लोग एक ही लाइन में लगाते हैं ताकि जिससे ये पता चले ये एक जनरेशन के हैं, ठीक है। तो ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये है हमारा फैमिली ट्री का एग्जांपल। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग अपने फैमिली ट्री में रखते हैं हमारी फर्स्ट जनरेशन को, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन हमारे कौन कौन होते हैं, हमारे फर्स्ट जनरेशन में कौन आते हैं, फर्स्ट जनरेशन में हमारी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर आते हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे दादा और दादी आते हैं, ठीक है। हमारे दादा दादी के बाद बारी आती है सेकेंड जनरेशन की, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन में कौन कौन आता है देख लीजिए। सेकेंड जनरेशन में बच्चों आते हैं हमारे मम्मी, हमारे पापा मीन्स हमारे मदर फादर, अंकल, आंट, ठीक है। समझ में आया। जो पहला जनरेशन है जिनसे हमारी फैमिली शुरू हुई है वो है हमारे दादा दादी, दादा दादी के वो बच्चे हैं, उन बच्चों की क्या है, वाइफ है। जैसे हमारे दादा दादी के बच्चे हैं हमारे फादर और हमारे अंकल, हमारी मम्मी हमारी मदर है और हमारी जो अंकल की वाइफ है वो हमारी आंट है, ठीक है। तो ये था सेकेंड जनरेशन। अब सेकेंड जनरेशन से बच्चों आता है हमारा थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन क्या है देखिए, ब्रदर सिस्टर, मम्मी पापा, ठीक है। आपके मम्मी पापा हैं तो आपके कौन होंगे, आपके भाई या फिर आपके बहन होंगे, ठीक है। फिर आपके अंकल आंटी से आपको कजन ब्रदर और कजन सिस्टर मिलेगा। तो ये है आपका फैमिली ट्री, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 1। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द रैप इट अप ऑफ दिस चैप्टर। हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है देख लीजिए। फैमिली कैन बी थ्री टाइप्स, फैमिली थ्री टाइप की होती है, न्यूक्लियर, बिग और जॉइंट, ठीक है। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शुड शेयर एवरीथिंग अमंग देमसेल्फ एंड शुड टेक केयर एंड लव ईच अदर, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली रिजेंबल्स वन अनदर, सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। ट्विंस आर टू सिबलिंग्स हु लुक एग्जैक्टली अलाइक। ट्विंस कौन होते हैं, ये दो सिबलिंग्स होते हैं, कभी कभी ये थ्री भी होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। A family tree can be constructed by arranging your family members from your grandparents to yours। तो family tree बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इतना ही है हमारे चैप्टर नंबर 1 में। अब सेल्फ इवैल्यूएशन एंड क्वेश्चन आंसर का काम आप लोगों को करना है, ठीक है। So my dear students, now I'm taking leave. I'm going to meet with you all in our next class with your new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.